Yes, so Assalamu alaikum everyone, and I'm Abby Shabasi in front of you all. So we are just waiting for the more viewers to come so we can start our session. So I'm just waiting for the viewers so we can begin with our session. And so till that, I would like to introduce myself. As you all know that my name is Mevi Shabasi and I am IVLP alumnus. So IVLP is basically an exchange program, International Visitors Leadership Exchange Program. So I went USA in this program, leadership program in 2014, and currently I am working as and giving my serving as voluntarily for Youth Group Director of PON Jamshoro chapter. So we will soon start our session as soon as we will get more participants, more viewers. And please ask questions, ask queries, anything, any help you need during this live session. So it would be easier and interactive as well, and easier for you to complete this process of application. So let's wait for a few more viewers. And please, if possible, take your friends, invite them. Okay, so this is a session about the Global U-Grade program. As you all know that we are keep sharing about the Global U-Grade program on our this page. And this is the program for the undergraduate students, and this is the semester exchange program in which you will get the opportunity to study for a semester in any college or the University of America. So yes, so far we have few more viewers right now. Okay. Okay guys, so let's begin with our session. We are not waiting more. So this is the session all about Global U-Grade program. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2019 Global U-Grade program. So U-Grade is basically undergraduates program, and yes, so we have got the first question about the Nimarta Rai, and she is saying who can apply for this program. So yes, who can apply? The students of college or university studying in second year or the third year, basically third semester, fourth semester, fifth semester and sixth semester students are eligible to apply for this program. And no, first year students can't apply. Alisher is asking the question about the first year students. So Alisher, first year students unfortunately can't apply for this program right now. And if you want to apply, you can apply next year as you come in the third semester or the fourth semester. So we will start with a few basic things for you all. Then we will discuss, yes, we will be discussing about the SOP, recommendation letters and essay. This is the question of Farman Ali Abbasi. We will be discussing it after a few minutes as I discuss about the eligibility criteria and the other details of this program. So who can apply for this program? That if you are 25-year-old or younger than this, not older than 25 years old, you can apply for this program. Enrolled in college or university. Basically college means if you are studying in college for the 13 years of education, like you have done intermediate and now you are studying in college or any university, so you can apply for this program. Basically first year students can't apply for this program, so you must have been enrolled in third semester, fourth semester, fifth semester or sixth semester. So it means you must be in second year or third year of university for this program, and committed to return back. So you will be going in this program. If you are selected, then you will study 6 months, 4 months or 5 months in any university or college of USA, and then you will return back in Pakistan and serve as Pak US alumni there now. So who are ineligible for this program, who can't apply?
if you have been already in any US exchange program, so maybe I guess yes students can go for it. Yes students can go for it, and those students who are studying in any US language program, there are many English language programs of USA here in Pakistan, they can also apply for it. And if you are not, if you haven't been to USA in any scholarship or exchange program, so students in final year of university can't apply for this program. You are not eligible sorry. And what is the process, how you can apply for this program? So the process is very easy and simple, and this is the online application process. You don't need to submit the application in hard copy to the USFP or the US Embassy. This is the simply online application process. You have to scan all your documents. You have to scan and prepare all your documents, your degrees, transcripts, recommendation letters, your certificates of extra activities, and you have to send these in online application process. And what is the online application process? So there is the website of USFP, USEFP, United States of Education and Foundation of Pakistan. So you need to go on this website first, and for this on Google or in your searching, you have to write USEF Pakistan, USEFP Pakistan.org, and in this letter you will go to Global UGRADE 2019. So जैसे ही आप foreign, so we have got another question as well. Okay, so we as you are as you go on the website of USFP, you will see the program Global UGRADE 2019. So जैसे ही आप उस प्रोग्राम पर जाएंगे, ग्लोबल यूग्रेड 2019 पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको फौरन से एक डेटा आ जाएगी, एक स्क्रीन आ जाएगी, एंड उस पर लिखा होगा एप्लीकेशन ओपन, एंड द डेडलाइन इज 23 अक्टूबर 2019. मतलब 23 अक्टूबर 2019 से पहले आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है. सो जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उससे पहले फ्लायर आएगा. सो यू हैव टू रीड द फ्लायर फर्स्ट. फ्लायर में सारी एलिजिबिलिटीज एंड इनएलिजिबिलिटीज शो होंगी, तो वो आप पहले पढ़ लें कि आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप एलिजिबल हैं एंड कैसे आप एलिजिबल नहीं हैं. सो जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन, मेक श्योर योर इंटरनेट इज वर्किंग वेल व्हाइल यू आर फुलफिलिंग योर एप्लीकेशन ऑनलाइन. सो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, देन द एप्लीकेशन विल स्टार्ट विद द लॉगिन. एज वी लॉग इन एवरीवेयर, सो दिस विल स्टार्ट. द लॉगिन विल रिक्वायर your email ID and your NIC. So make sure you put the correct information. So so you will write that you are new applicant. Okay. So Ali Umair is again asking the same question. Ali Umair, we are really sorry, final year students can't apply for this program. You must be enrolled in second year or third year of the university. Okay. So we were discussing about how to register or how to apply for this program. So you will log in this, you will put your email and your NIC, and later the confirmation email will be sent on your email, and through this link you will go and you will put the password and the application process will start. So the first जो आपके पास स्क्रीन आएगी after the login process, this will be the get started, and आप उस पर जो है सारी इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, वो आप कम्प्लीटली उसको पढ़ लें कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे एप्लीकेशन में, तो वो सब आपको इंग्लिश में आंसर करने हैं. एंड मेक श्योर जो आपकी इंग्लिश होगी वो सिंपल इंग्लिश हो. लाजमी नहीं है कि आप कुछ हाई फाई टाइप की या कुछ एक्स्ट्रा वोकेब वाली इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं. आप सिंपल इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं, एंड गो विद सिंपल इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश एंड सिंपल इंग्लिश. सो आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन इंग्लिश, including your legal name, family name, surname as spelled on your passport. Make sure you write correct name, because mostly students अपना correct name नहीं लिखते, और वो ही उनकी नेगेटिव मार्किंग में काउंट भी होता है. सो इन्फॉर्मेशन जो होगी इसमें आपकी एड्रेस भी होगा, आपका कंट्री कोड भी होगा, एवरीथिंग जो आप उसमें इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो आप करेक्ट लिखेंगे.
अगर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आप ऐसे लिख रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दिस। पहले आप इन्फॉर्मेशन करेक्ट करें और फिर अप्लाई करें। कोई भी ब्लैंक ना छोड़ें एप्लीकेशन में, बिकॉज ये ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई भी ब्लैंक ना छोड़ें। एंड जो भी आपको आंसर नहीं पता या फिर जिसमें आप एप्लीकेबल नहीं हो आंसर लिखने के लिए, सो प्लीज राइट NA, विच मीन्स नॉट एप्लीकेबल। एंड जो भी मटेरियल्स है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सब आपके पास ऑलरेडी स्कैन में होनी चाहिए। आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी मार्कशीट्स, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स, ओके। एंड देन प्लीज read the field of study. There are mostly I guess 24 fields of study in which you can apply. So उन 24 fields of study में से कोई एक field of study आपको select करनी है। And please make sure कि वो field of study आप application start करने से पहले select करते हैं। Suppose कि मैं field of study अपना chemistry select करती हूँ या computer science select करती हूँ या biology select करती हूँ, तो मुझे उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनका आंसर दे सकूँ। एंड देन academic qualification. So you must be enrolled in second year or third year. I am repeating this again and again. You must be enrolled in second year or third year of university, and you must be prepared. You must have all of your certificates, your transcripts, your documents, and your extracurricular activities certificates scanned. Okay. And if you have membership in any organization or any program, like many of us have the membership in Rotary Club or in any extra activities, so must mention you have that membership card. This will be your positive point. Positive points will be given to you if you have memberships, if you do extra activities. So these things will be. Yes, Manisha is asking the question that MBBS student, what should I need to do to select the field? So Manisha, for the MBBS students, you have the different fields. You can select the hospitality management, okay. You can also go with anthropology, biology, or something like this. So depends on your interest. Medical students get UGRADE scholarships as well. So you can put any field which you like, mostly that must be related with your study MBBS. So now coming, so this is the all about the get started. You will read the everything, that recommendation letters are also required. So आप पहले क्या करेंगे कि आप किसी भी 2 टीचर्स या जो 2 बंदे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, जिसको आपके बारे में ज़्यादा पता है, तो उससे आप 2 रिकमेंडेशन लेटर्स किसी भी 2 पर्सन से लिखवा लें। सो लाजमी ये बात है कि वो रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास हार्ड कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि वैसे तो आप ऑनलाइन वो रिकमेंडेशन लेटर्स रख लेंगे, उनके ईमेल इन्फॉर्मेशन भी लिख लेंगे जिससे आप रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवा रहे हैं अपने लिए, उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स भी आपको देने हैं, उनके नेम्स भी करेक्ट देने हैं आप, लेकिन ये सब तो ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन उनके जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो आपको हार्ड कॉपी में होने चाहिए, बिकॉज जब आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएगी, इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम, तो क्या होगा कि वो रिकमेंडेशन लेटर्स आपको फिर आगे चल के देने होंगे, लाजमी देने होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गेट स्टार्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ ग्लोबल यूग्रेड। उसके बाद आता है अबाउट द पर्सनल इंफॉर्मेशन। सो पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी जो भी चीज़ें हैं आपको वो करेक्टली देनी है, एंड लाइक एवरीथिंग, आपका करेक्ट नेम, आपका करेक्ट फादर्स नेम, जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, अगर पासपोर्ट अभी नहीं बना हुआ तो NIC पे जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जिस तरह से लिखी हुई है, मेक श्योर अगर आप इंग्लिश में अपने नेम की एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट वाली लिखें, तो ये आपको आगे चल के कोई इशू नहीं होगा। एंड आपके घर का एड्रेस वगैरह एवरीथिंग आप बिल्कुल एक्यूरेट एंड करेक्ट लिखें, और कोई भी जो है वो जगह वो है आप खाली ना छोड़ें प्लीज़। एंड उसके बाद आता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप मतलब अभी किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप किस सेमेस्टर में आपने क्या स्कोर किया, एंड मैट्रिक में आपका क्या स्कोर था, मैट्रिक में आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी, इंटरमीडिएट में आपका क्या स्कोर था, आपकी क्या रिजल्ट थी, एंड उन सब की जो ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं वो होनी चाहिए एकेडमिक
इंफॉर्मेशन में। और अभी जो अगर सपोज आप अभी 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपके पास 2nd सेमेस्टर, आप 4th सेमेस्टर में तो आपके पास 3rd सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। तो मेक श्योर कि आपके पास जो लास्ट ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट है वो लाजमी होनी चाहिए। जैसे आप 6th सेमेस्टर में तो आपके पास 5th की होनी चाहिए, या 4th में तो 3rd की होनी चाहिए। तो ये डेटा आपके पास कम्प्लीटली होनी चाहिए। उसके बाद आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि उसमें आप अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करेंगे। एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। मेक श्योर आपने अभी तक, क्योंकि ये जितने भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं वो देखते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हों। सो मेक श्योर आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं, या कभी भी अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, या कहीं भी आपने वॉलंटियरली वर्क किया, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कहीं पर आपने किसी को वॉलंटियरली कुछ मतलब कर लिया, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत इन है। सोशल मीडिया पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो होनी चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं लेकिन विथ प्रूफ होनी चाहिए। लाइक आपके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसके थ्रू आप जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वो आप इंक्लूड करेंगे। लाजमी है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के, और जितने ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी वो बहुत अच्छी होंगी आपकी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर योर एप्लीकेशन। एंड उसके बाद आता है पर्सनल स्टेटमेंट। एंड द पर्सनल स्टेटमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, जो आपको सोच समझ के फिल करना है। एंड मेक श्योर जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वो सारे के सारे अपना वर्ड में एक फोल्डर बना दें, और वो सारे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर लें वर्ड में। सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लें आप वर्ड में सारे क्वेश्चंस, एंड पहले आप उनके आंसर्स वहीं पे दें, वर्ड में उनके आंसर्स दें। तो इससे आपको हेल्प होगा कि आप उनको बार बार रिफाइन कर सकेंगे, बार बार करेक्ट कर सकेंगे। एट अ टाइम आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में भले ना फिल करें, आप उनको वर्ड में रखें और उनको रिफाइन करें, उनको बार बार फिल करें क्वेश्चंस के आंसर्स को। और जो भी एक्सपीरियंस बंदा है, कोई भी है, एवरीवन, या आपकी फैमिली में कोई है, कोई फ्रेंड है या कोई टीचर है आपका, तो आप उसको वो आंसर्स दिखाएं, ताकि अगर उसमें कोई गलती है या कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो कर सके। उसके बाद वो जो आंसर्स हैं आपके, वो आप कॉपी पेस्ट करके अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाल दें। लेकिन मेक श्योर वन थिंग, जो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, ये गलती करते हैं कि जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं पर्सनल स्टेटमेंट में या एसे में या एसओपी में या रिकमेंडेशन लेटर्स में, वो कॉपी पेस्ट करते हैं गूगल से। सो प्लीज नेवर डू दिस, नेवर कॉपी पेस्ट एनीथिंग फ्रॉम गूगल फॉर एनी स्कॉलरशिप यू आर अप्लाइंग, स्पेशली फॉर योर ग्रेड। आपने एक लाइन भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपने खुद लिखना है, सच लिखना है, खुद लिखना है, क्वेश्चंस के आंसर्स खुद देने हैं। जो भी आपके माइंड में, जैसा भी आप मतलब उसके लिए आपके पास जो भी सोच आ रही, तो वो आप खुद लिखें। प्लीज़ डोंट कॉपी पेस्ट एनीथिंग, क्योंकि कॉपी पेस्ट से क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा कॉपी पेस्ट करने से। उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ग्लोबल यू ग्रेड की एप्लीकेशन चेक करते हैं कि वो जो है वो बिल्कुल सेंसर कर लेंगे कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया। इवन अ सिंगल लाइन कुड बी सेंसर्ड। सो प्लीज़ मेक श्योर डोंट कॉपी एनीथिंग। और मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने ग्लोबल यू ग्रेड में अप्लाई किया, मैं सिलेक्ट हो गई, ठीक है, देन मेरे जो फ्रेंड्स होंगे वो मुझसे मेरी एप्लीकेशन मांगेंगे, मुझसे मेरा एसओपी मांगेंगे, रिकमेंडेशन लेटर्स मांगेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट मांगेंगे। तो प्लीज़ अगर आप किसी से मांग भी रहे हो तो जस्ट अंदाज़ा करने के लिए मांगो, उसका कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं मांगो। तो ये भी आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकता है। सो जो भी आप लिखें करें अपने जहन से करें और सच लिखें, कोई भी झूठ ना लिखें, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, कहानियाँ बना लें एंड ऐसे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज एसओपी। एसओपी के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि हम एसओपी क्या लिखें, एसओपी कैसे लिखें, एंड एसओपी हमारा कैसा हो कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि हमारा एसओपी ठीक नहीं होता। मैं आपको एसओपी के बारे में बताती हूँ। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस ये भी आ रहे हैं कि हम क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल।
you must be enrolled in second year or third year of your bachelor's, your undergraduate study, because this is the undergraduate semester exchange program. So you must be enrolled in first, second year or third year of your university. MPhil students are not eligible. This is only for undergraduate students. Okay, and now coming towards the SOP thing, which is most important thing. Okay, so SOP में जो है वो mostly 3 जो है वो important parts होते हैं SOP के. First is introduction part, okay, and second is your thoughts, why are you applying for this program, and the all details. Why are you applying for this program? Why are you interested? What will you do when you are returned from this program? And your introduction is also most important. So mostly students introduction में भी क्या करते हैं, गलती करते हैं कि इंट्रोडक्शन में अपना नाम, अपनी कास्ट, अपना विलेज, अपना बैकग्राउंड और ये सब चीज़ें बताने में स्टार्ट हो जाते हैं. सो प्लीज़ डोंट डू दिस. आपने अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें आपने अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग आपने दे दी है, अपना एड्रेस भी दे दिया है. सो इंट्रोडक्शन में प्लीज़ ये सब चीज़ें नहीं बताएं. आप जब SOP लिख रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप नहीं बताएं. कोई भी अपनी हिस्ट्री जो है, निम्रता कागिन क्वेश्चन है कि सेकंड सेमेस्टर. नो डियर, सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल. इफ़ यू आर एनरोल्ड इन थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर, देन यू आर एलिजिबल. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने ये सब चीज़ें नहीं लिखी. क्या लिखना है? आपने ये लिखना है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, आप क्या चीज़ें करते हैं, आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, आपकी थॉट्स क्या हैं, आपकी स्ट्रगल क्या है, एंड आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं. अगर आपने सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं, अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आ रही है, अगर आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सो दीज ऑल थिंग्स विल कम इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट. एंड मेक श्योर द वर्ड काउंट इज 250 आर लेस. सो 250 से ज़्यादा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो आप वर्ड में जो है MS वर्ड में ये चीज़ बनाएंगे और वर्ड काउंट आपने 250 ही रखना है. और SOP में आपने और क्या चीज़ बतानी है? SOP में आपने अपने गोल्स बताने हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, गोल्स बताने हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, वो अचीवमेंट हमें आ गया. और गोल्स बताने हैं कि क्या क्या गोल्स हैं आपके माइंड में. अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम ले लिया, तो आपके क्या गोल्स हैं, आपके माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपने क्या करना है आगे चल के. तो मेक श्योर आपने अपने माइंड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अच्छे गोल्स जो है वो आपने रखे हैं. एंड पर्सनल डेवलपमेंट एंड पर्सनल अचीवमेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट. कि आप ये एजुकेशन लेने जा रहे हो US, आपने सेमेस्टर प्रोग्राम जो एक्शन प्रोग्राम में अपनी स्कॉलरशिप अचीव कर ली है, तो आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या बन रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने अपने एकेडमिक जो है ऑब्जेक्टिव्स वो भी रखने हैं अपने SOP में. ये चीज़ें आपने SOP में लाजमी रखनी है. और रिमेंबर दिस थिंग, यू मस्ट रिमेंबर कि यू ग्रेड जो है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो कल्चर के बारे में SOP में नहीं देखते. वो कल्चर के बारे में अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स में, अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं लिखते. यू मस्ट राइट अबाउट द कल्चर थिंग कि आपका अपने कल्चर को भी अडोर करना है और आपने अमेरिकन्स के कल्चर को भी अडोर करना है. कि आप वहाँ जा रहे हो, आपने उनके कल्चर से क्या चीज़ें सीखनी है, आप उनके कल्चर से क्या चीज़ें सीख रहे हो, एंड उनका कल्चर आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए कैसे इम्पोर्टेंट होगा. सो मेक श्योर आप दिस इज द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, सो यू मस्ट मेंशन अबाउट द कल्चरल थिंग, डोंट फॉरगेट इट. एंड as I discussed, the first para must be your introduction and your education. Please don't write your histories in introduction. Don't write your village information in your introduction. Write your achievements, your objectives in introduction part. The second para in your SOP must be about your volunteer work, activities and your hobbies. As I mentioned before, कि आपकी जो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं और वो आपको SOP के सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करनी है कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या वॉलंटियर वर्क किया है और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं और उन वॉलंटियर वर्क का फ़ायदा क्या हुआ, जो आपकी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है. क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं चाहिए होते जिनकी हाईएस्ट पोजीशंस आए या कुछ, ठीक है,
positions and grades are important, but make sure you also do the extra activities. You do community service, you do volunteer work. And the third paragraph of SOP must be your future goals, your plans. कि आपने ये स्कॉलरशिप ले ली, आप यूएस चले गए 6 मंथ्स के लिए एंड वापस आप आ गए, तो आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, व्हाट विल यू डू. सो दिस मस्ट बी आल्सो इंक्लूडेड इन योर SOP. The last para of your SOP must be make sure it must be about the importance of this program in your life. Why you want to achieve this program, the importance of this program for you, and why you want to get this scholarship. So ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है अपने लास्ट पैराग्राफ में. एंड दिस मस्ट बी ट्रू. आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है, कोई गूगल से उठा के बात नहीं करनी है, बिकॉज दीज थिंग्स विल बी सेंसर्ड एंड वो समझ जाएंगे कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखा है. सो मेक श्योर कि आप जो भी अपने लिख रहे हैं कि आपने ये स्कॉलरशिप क्यों लेनी है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपकी लाइफ में, एंड क्यों आपको ये चीज़ चाहिए, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए एंड बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए कि आपको क्यों चाहिए एंड आपके लिए ये स्कॉलरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन रीड कर रहा है उसके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ठीक है, सपोज़ मैं विश में हूँ, सपोज़ मुझे ये स्कॉलरशिप चाहिए, लेकिन मुझे क्यों चाहिए. ठीक है, आई वॉन्ट टू गो USA फॉर वाट, फॉर फन, फॉर विजिटिंग द US यूनिवर्सिटीज़ एंड द सिटीज़ ऑफ अमेरिका. नो. So I need this scholarship for what? For education, to change my culture with American culture, like this. कि क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में इस स्कॉलरशिप के लिए. सो मेक श्योर आप ये जो 4 पैराग्राफ मैंने SOP के लिए बताए, मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ कि SOP में आपके 4 पैराग्राफ्स होंगे. ठीक है, और फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन लिखनी है और अपनी अचीवमेंट्स लिखनी है. कौन से अचीवमेंट्स? जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, लाइक वाट आर यू स्टडिंग एंड आपकी कोई पोजीशन आ गई कुछ कोई डिबेट में या ऐसा कुछ भी. एंड सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, आपका वॉलंटियर वर्क, आपकी अचीवमेंट्स, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड अचीवमेंट्स हैं वो, एंड आपकी हॉबीज़. ये आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखनी है SOP के. एंड द थर्ड थिंग, आपके थर्ड पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, आपके फ्यूचर गोल्स लिखने हैं आपने थर्ड पैराग्राफ में कि आफ्टर दिस स्कॉलरशिप आप क्या मतलब करना चाह रहे हैं आफ्टर दिस स्कॉलरशिप, या आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इन योर मास्टर्स और इन योर जॉब, इन योर करियर, आप कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं जो आपको ये स्कॉलरशिप मिले. एंड द लास्ट पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द SOP thing. So the question about Manisha is asking a question, what type of vocabulary we need to use in SOP. So Manisha, ये बात मैंने पहले भी बता दी है, मैं आपके लिए रिपीट करती चलूँ. तो SOP हो या पर्सनल स्टेटमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन, अकेडमिक, पर्सनल, एनीथिंग, रिकमेंडेशन लेटर्स, एनीथिंग, जो भी आप चीज़ लिख रहे हो उसके लिए आप करेक्ट इंग्लिश यूज़ करें, करेक्ट इंग्लिश यूज़ करें. भले आपकी वोकेब सिंपल है, बस ये श्योर हो कि आपकी जो इंग्लिश आप वहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं वो आपकी करेक्ट इंग्लिश हो. आपकी इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए एंड आप इंग्लिश बोलने में भी फ्लुएंट होने चाहिए, ताकि जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तो वो इंग्लिश में होगा. एंड मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग में भी ठीक है, करेक्ट है, मतलब वोकेब का इतना इशू नहीं है लेकिन करेक्ट इंग्लिश है. सो मेक श्योर, तो आपने सिंपल और करेक्ट इंग्लिश लिखनी है. ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चंस आते हैं तो आई विल आल्सो आंसर दिस थिंग. एंड 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको रिकॉर्ड होंगे, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कौन से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे. वो आप किसी भी अपने प्रोफेसर, टीचर या जो आपको जानता है आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, तो आप उनसे 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवाएंगे. एंड मेक श्योर कि वो हार्ड कॉपी में रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास अवेलेबल हों और उनकी करेक्ट ईमेल, करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर एंड करेक्ट नेम भी आपके पास हो, तो वो आप ऐड करेंगे. माहीन का क्वेश्चन है, फॉर विच डिपार्टमेंट दिस स्कॉलरशिप विल बी अवेल. आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन माहीन. सो जैसे मैंने आपका ये क्वेश्चन समझा है तो मैं उसी तरह से आंसर दे रही हूँ कि माहीन, अगर डिपार्टमेंट बेसिकली आप BS किस में कर रहे हो, आप बैचलर्स किस में कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट स्टडी आप किस में कर रहे हो, तो गो विथ दैट. अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो, बायो में कर रहे हो, एजुकेशन में कर रहे हो, सो देर आर 24 ऑप्शंस इन यू ग्रेड.
जब आप जाएंगे एप्लीकेशन में तो आपको 24 फील्ड्स मिलेंगी। तो आप उन 24 फील्ड्स में से वो फील्ड सेलेक्ट करेंगे, वो प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जो आपकी बीएस या अंडर ग्रेजुएट स्टडी से रिलेटेड होगा, उसके आसपास होगा, उससे रिलेटेड होगा, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। साइमा का क्वेश्चन है, सी स्टूडेंट्स FCS यू कैन अप्लाई if you are in 13 year 14 year 14 year 15 year of the education, so you can apply, you can go for it. And this is a simple process, you can go for it. And let me scroll few more questions. Okay. Okay, so there is a question about the theme thing. So there isn't any particular theme to apply for this program. ऐसी कोई थीम नहीं है भाई, जो आपने काम किया है, जो आप कर रहे हो, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आप उन सब चीज़ों को लेके चलें. So there is a question of Kamran Aziz, students from MSc Computer can apply. No dear, the masters, I think masters एक तो वो होती है जो आफ्टर 13 ईयर्स 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो होती है, 15th ईयर ऑफ एजुकेशन होता है जो MSc वाला, वो अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट इन फाइनल ईयर ऑफ मास्टर MSc, नॉट मास्टर्स बट MSc. सो इफ़ यू आर इन 15th ईयर ऑफ योर एजुकेशन, 12th हो गए इंटरमीडिएट के, उसके बाद इफ़ यू आर इन 15th और 16th ईयर ऑफ योर एजुकेशन, सो यू कैन अप्लाई. No, if you Zainul Abdin is saying if I have passed from university, can I apply? No, you can't apply. You are passed from university, you can't apply. If you are currently enrolled in university, in second year or third year of university or college, you can apply. But if you are passed, you can't apply for this program. You can go for other opportunities of UCEFI. They give other scholarships for masters and PhD students. You can go for those. But you can't apply for U-grade. U-grade is basically for undergraduate students. And again, the important thing, the question is coming, so I would like to clear it. Please don't copy paste anything from Google to answer the questions. Don't copy paste from other students' application, or don't copy paste from the selected students' applications as well. Don't copy paste anything. जो भी ये information आप खुद लिखें, खुद से लिखें, correct लिखें, and don't fake. कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी. अगर आप श्योर नहीं है अपनी इंग्लिश के लिए कि आपने करेक्ट इंग्लिश यूज़ की है या करेक्ट SOP लिखा है, नहीं लिखा, करेक्ट रिकमेंडेशन लेटर्स हैं या नहीं है, तो वो आप जो है अपना एक MS वर्ड पे ड्राफ्ट बना लें और अपने किसी भी प्रोफेसर, टीचर, फ्रेंड, स्टूडेंट या सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप किसी फॉर्मर U-ग्रेडियन से आप चेक करवा लें. So I have the Varda is asking any expensive that we have to bear. No dear, you don't have to bear any expensive for this scholarship. If you are selected for this scholarship, this will be fully funded scholarship. They will provide you each and every expensive. They will provide you each and everything, even for the visa process, even for the travel thing, इवन फॉर द अदर इवेंट्स. जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको फर्दर जो है आपके सेशंस होंगे, इवेंट्स होंगे अमेरिका जाने से पहले, तो वो भी आपको आपके जो होंगे वो फुली फंडेड होंगे. एंड US में भी आपकी जो सारी चीज़ें हैं, सारी A to Z वो आपकी फुली फंडेड होंगी. आपके टूर्स, ट्रिप्स होंगी वहाँ पे, वो फुली फंडेड होंगी. आपको बुक्स के लिए मंथली अलाउंस मिलेगा, आपका स्टे फुली फंडेड होगा. आपको कुछ मतलब पॉकेट मनी टाइप भी आपको एक्स्ट्रा जो है वो पैसे होंगे, वो आप अपने लिए भी यूज़ कर सकेंगे. सो दिस विल बी फुली फंडेड. आपको कोई भी चीज़, आपका एयर फेयर, यहाँ से पाकिस्तान से US जाना है, US से पाकिस्तान वापस आना, ईच एंड एवरीथिंग, आपका फूड, आपकी हर एक चीज़ जो है, आपकी फीस वहाँ पर जो भी होगी 6 मंथ्स तक, एवरीथिंग जो है वो आपका ये स्कॉलरशिप वो है वो पे करेगा. And which universities have affiliated this program? This is the question of Shoaib Eman. Shoaib, every university is affiliated. Every university student can apply for this program of Pakistan. This is basically the program for students of Pakistan. So if you are eligible, if you are 25 years old or less than 25 years old and enrolled in second year or third year of university, you can apply. So there isn't any requirement of any particular university. You can apply.
Okay, so Kasim Khoso has missed this session and asking to share the details again. So Kasim, as I complete this video, as I complete this session, you can again watch it from start. We will save this session on our page and you can take your friends and you can share as well. Manisha is asking why we need recommendation letter now. I think we need for interview, right? So Manisha, okay, so I am reading few more questions as well, so I will answer these are questions together. No, Manisha. So Manisha, recommendation letters are required right now as well. So as you will start the online application process, you will download the recommendation letters from online application. So there will be 2 recommendation letters and you are required to submit these 2 recommendation letters with your online application as well, with your other documents, with your transcripts, with your extra activity certificates. You will also give your 2 recommendation letters. Make sure you have the hard copy of recommendation letters with yourself. Aksa is asking how can we apply. Aksa, the process is simple. I mentioned in beginning of this video, in beginning of this session. You can apply on the website of usefpakistan.org, USEFP pakistan.org, and you will go on the Global U Grade 2019, and this is the complete online process. This is the complete online process. Make sure you don't have need to send any application, any document in hard copy to the embassy. This is the complete totally online process. From your SOP to your recommendations and your documents, everything will be submitted online. Make sure your internet is working correctly when you apply. And yes, ये चीज़ आप जहन में रख लें कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एट ए टाइम अप्लाई नहीं करना. सो डोंट वरी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन, ये मोस्टली 3, 4, 5, 6 आवर्स लगा देगा ये एप्लीकेशन. सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक ही दिन में ये एप्लीकेशन पूरी कर सकें. सो द डेडलाइन इज़ 23 अक्टूबर 2018. 23 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास. जैसे आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 बाय 1 जो भी आपकी चीज़ है वो आप सेव करते जाएं. उसमें ऑनलाइन सेव होगी, आपका अकाउंट बन जाएगा और वो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सेव हो जाएगी. तो आप उसको ऑनलाइन सेव करते चलें, तो ताकि ये आप 23 अक्टूबर से पहले या 23 अक्टूबर तक आप सबमिट करवा सकें. सो डोंट वरी, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन पहले गई तो आपकी एक्सेप्ट होगी या लास्ट में गई तो एक्सेप्ट नहीं होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप आराम से फिल करें, एक दिन में फिल ना करें. आराम से टेक योर टाइम एंड करेक्ट, और लोगों को चेक करवा के आप वो एप्लीकेशन अपनी एडिट करते जाएं, उसको सेट करते जाएं. फाइनल डे तक आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप सेट कर सकते हैं. आप प्रीवियस आंसर्स में जाकर आप उनको एडिट कर सकते हैं, आप उनको सेट कर सकते हैं. सो डोंट मेक हरी, जल्दबाजी में ना जाएं कि बस आपने जो है वो एक ही दिन में एप्लीकेशन करनी है, आपकी जल्दी जाएगी तो आपकी एक्सेप्ट होगी. ऐसा कुछ नहीं है. जिसकी एप्लीकेशन लास्ट मिनट में भी जाएगी उसकी भी वैसे ही चेक होगी जिसने सबसे पहले जो है वो सबमिट करवाई है. Manisha is saying friend not submitted the recommendation letter online. Okay, yes Manisha, पहले जो था कुछ साल पहले तक यू ग्रेड वाले ऐसे करते थे कि ऑनलाइन ये चीज़ें सबमिट नहीं होती थी, वो सेंड करनी पड़ती थी. लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस है एंड आपको वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेंगी. जैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, आप एप्लीकेशन में जाओगे, आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है. और ये जो भी चीज़ें हैं आपको वो वहीं पर डिटेल्स लिखी हुई हैं. एंड रीड एवरी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइन, कि आपने ये कैसे चीज़ें करनी है. सो आई गेस आई एम डन विथ माई सेशन. अगर आपको आई विल वेट फॉर 2 or 3 minutes मोर. अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आई विल आंसर दोज, अदरवाइज आई विल फिनिश दिस सेशन. एंड उसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई भी है, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं. सो आई विल डेफिनेटली आंसर दोज. So we are just waiting for 2 minutes. If I receive any question, I will answer those. Otherwise, we will end this session right now. And this was all about the U Grade program. And yes, best of luck. I'm sure you all will apply and go for it. Online form filling. Okay, so Shoaib is asking about how to apply online. Shoaib, this is simply the website. Please watch this video again. You will get to know how to apply online.
English language and literature. Okay. Akash is asking, I am in Department of English language and literature. Then in which field should I need to go? So for English, there is the simply the field of education. You can go for the education field as well, and there are few other studies are the fields as well. You can go for those. Depends on your interest. So I would suggest if you are in English, go for the education field. Okay, Manisha is asking, recommendation letter must be from any doctor or any other person. Manisha, this is not important that recommendation letter must be from any doctor. सो बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है कि कोई बंदा आपको रिकमेंड कर रहा है इस स्कॉलरशिप के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए आप क्या करोगी, उसके लिए आप उस बंदे से या उस टीचर से, उस प्रोफेसर से या उस बंदे से जहाँ पर आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की हैं, उससे आप रिकमेंडेशन लेटर लिखवाओगी, जो आपको अच्छे से जानता है, जो जानता है कि मनीषा क्या है, मनीषा क्या करती है, मनीषा की क्या अचीवमेंट्स हैं, मनीषा की क्या एक्टिविटीज़ हैं, मनीषा किस टाइप की गर्ल है, मनीषा में कितना वो है, वो मतलब इंथुसिज्म है, पावर है, क्या कर सकती है, मतलब जो बंदा आपको अच्छी तरह से जानता हो तो वो बंदा आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखे। ऐसे किसी से नहीं लिखवाइएगा, उससे लिखवाइएगा जो आपको अच्छी तरीके से जानता हो। ओके। Anand is asking, is this program is offered every year? Yes, Anand, this program is offered every year in month of September and October. So every year you can go for it if you are a student of second year or third year. करंटली जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं, जो मुझसे पूछ रहे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप लोग एक साल वेट कर लें। नेक्स्ट ईयर जब आप सितंबर या अक्टूबर में आएंगे तो आप अप्लाई कर सकेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तब तक आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर लें, तब तक आप अपने आप को बिजी रखें, आप अपने अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स बनाएं। सर्विसेज जो हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हो, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी से बाहर या सोशल सर्विस हैं, आप उनमें इन्वॉल्व हों एक साल। तो एक साल के बाद जब आप एलिजिबल हों तो आपकी जो एप्लीकेशन हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। एंड तारिक इज आस्किंग, आई एम इन 7th सेमेस्टर, कैन आई अप्लाई? नो तारिक, तो सो द 7th सेमेस्टर इज द फाइनल ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, यू कांट अप्लाई अनफॉर्चुनेटली। Meghraj Kohli is asking, completed my graduation in environmental science, can I apply? No, Meghraj, if you are graduated you can't apply. This is for undergraduate students who are in second year and third year of university. You can apply for Fulbright, which is also announced every year. Fulbright is for masters and PhD. You can apply for Fulbright. Okay, so okay, few more questions. Kasim is asking, what is my designation in this? Kasim, I am working voluntarily for it. I went USA in IVLP, International Visitors Leadership Program, in 2014, and since that I am alumni of PAC US Alumni Network, and currently I am working as Youth Group Director of PAC US Alumni Network, Jamshoro Chapter. And we do organize such type of informative sessions, we do activities, we do the sessions on scholarships and exchange program. So that's why I came online to let you all know about this program. You are most welcome, Manisha. And Akash is asking, what will they teach us in education field? So Akash, this will be the simple, the education thing, and this will be related to your topics or your previous education. So don't worry about it. Don't worry about it. If your application is strong, they will select you. If your SOP and recommendation letters are strong, they will select you and they will guide you further. There will be orientation sessions as well before going to USA, and these orientation sessions will be helpful for you. No, masters students are not eligible. If this is the masters of 15th year of the education or 14th year of the education, then you can apply. If this is about the 18th year of the education, then you can't apply. 17th or 18th years of education master, you can't apply. This is it. So I guess I am done with all the questions. So let's wait for one more minute. If I get any questions, so I will answer those. And जिनके भी questions रह गए हैं,
या जिनको और गाइडलाइन चाहिए, या फिर जब आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड एप्लीकेशन के दौरान आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, सो डू कमेंट on our page your questions, your queries. We will answer those. I will try, I will make sure I will answer those. एंड अगर किसी को अपनी कोई चीज़, अपना SOP, आंसर्स, लेटर्स कुछ भी चेक करवाना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम अबाउट दैट एज वेल. ओके, so thank you everyone. So this was a very interesting session, I guess, for you all, and we also interesting for me as well, and interactive as well, and I'm glad you all asked your questions, queries, so I answered all those. And if अगर कोई चीज़ रह गई है या बाद में आपके जहन में आती है, so please do ask any time on this page, in comment box or in inbox, as you like. So best of luck to everyone. I hope you all will apply, and my best wishes are with you. I hope you all will get selected. Please take this video with your other friends, with other undergraduates who can apply, and share, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके जिनको गाइडलाइन चाहिए अबाउट दिस प्रोग्राम. एंड बेस्ट ऑफ लक. आई होप आप सब सिलेक्ट हो जाएं यू ग्रेड के लिए, एंड आप सब भी हमारे अलमनाई बन जाएं. सो टिल दैट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.